व्हाट्स अप एवरीवन। भाई आज नो बकवास सीधी बात। यस सीधी बात, नो बकवास, व्हाटएवर इट इज, लेकिन डेफिनेटली आई एम इन अ गुड मूड। अभी के लिए इट इज जस्ट अ स्टार्ट। पहले बोल देता हूं, इट इज जस्ट अ स्टार्ट। वी हैव रीच्ड 10K एंड बियॉन्ड। Look at us. Hey, look at us. Look at us. Huh? Who would have thought? Not me. But it couldn't have been possible without you guys and each and everyone watching। अभी मैं बोल रहा हूँ even all the haters जिसके प्रति rant आता है मेरा कभी कभी, लेकिन you all know at the end of the day we are all football fans। तो भाई it is nothing against anyone, definitely मैं बोलता हूँ दिल से thanks a lot, लेकिन it is again just a start, very beginning। we have to be there together, our almighty fam, when we reach not only 100K but 1 million, 10 million and beyond। Yes, I really mean it. I genuinely mean it because it's a fan channel for all to see and it'll remain that way। लेकिन कहीं ना कहीं वो बिटर स्वीट मोमेंट हो गया थोड़ा सा, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज, ऑब्वियसली आप बैकग्राउंड से बता दिए होंगे, आज तो भाई इट इज लिटरली EPL टॉक्स, लेकिन फोकस ऑन चेल्सी फॉर द टाइम बीइंग। कल रात को किया था स्ट्रीम, उस स्ट्रीम में पता लग गया था कि कहीं ना कहीं उड़ती उड़ती खबर आ रही थी अबाउट Nkunku being injured। वो हमें पता था, but how bad was the injury, right? It was supposed to be just for a month max, लेकिन अब बोल रहे it is weeks and months together हो सकता है। Again, by the time आप देखो ये वाला वीडियो, pretty sure there will be a statement on Chelsea's website or the app, क्योंकि it has been confirmed, if I'm not wrong, by Fabrizio Romano also, कि कहीं ना कहीं जो Simon Johnson I believe had reported that yes the news may not be great, और आज वो clarify होगा। और it's a knee injury, pretty bad again, I know injury prone player था, but again remember last वाला जो friendly था against Dortmund wasn't on a great pitch, so could we have avoided that? Again it is bit kind of unfortunate, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सीखना चाहिए इससे वापस से। Again it's a new management, तो किसको तो blame कर सकते हैं, लेकिन it is a meniscus damage to his left knee, looks like it, or it will be at least 5 to 6 weeks, if not it will be double that as well। अब वो क्या है exactly आपको पता लग जाएगा by the time you watch this video, I'm guessing, और मैं comment section में भी आपका सुनना चाहूंगा। What should Chelsea do now? मतलब ये panic stations है कि यार Nkunku obviously 1, 2, 3 महीने में तो वापस आएगा ही, it's not going to be like a really long time, तो भाई तब क्या, मतलब should we wait till January and see how is his recovery? और हमने बोलना है कि यार ब्रोया एनीवे है, play him as a striker and again keep Martin, don't let say for example Casadei go on loan, पता नहीं, मतलब that is one option, just use our youngsters or use Broja more in terms of minutes in the striker position। और याद रखिए निकोलस जैक्सन भी खेल सकता है वाइड फॉरवर्ड, हमने वो भी कवर किया था। बट अगेन मतलब व्हाट अबाउट द ट्रांसफर न्यूज जिस पर हम आ रहे हैं अभी गैब्री वेगा, एक बंदा जो हम इंटरेस्टेड थे लास्ट मंथ, इस महीने में इतना नहीं आया न्यूज, लेकिन अगेन वी ऑल नो सेल्टा विगो का there's a release clause of 40 million euros। should Chelsea go for him? ये एक नंबर 10/नंबर 8 खेल सकता है, remember that। तो does he fit the Chelsea system really? If you ask me, not really। जैसे मैंने देखा है, मैंने एक्सपेक्ट किया था जब पॉच शुरू नहीं किए थे इन टर्म्स ऑफ प्री सीजन, वी मे प्ले 4-3-3 lot of matches as well, लेकिन looks like वो 4-2-3-1 में अड़े, changing into a 3-3-3-1, so I don't think is ideal in that formation Gabry Vega। लेकिन सुनने में आया that there is a bid for Gabry Vega by Napoli 30 million euros का, और वो टर्न डाउन किया गया है बिकॉज उनका रिलीज क्लॉज ही 40 million है। तो भाई क्यों ही, तो when Man City Chelsea be interested, तो let's see if Man City go for him as well। और talking about competition, should we go for a Mohamed Kudus? Mohamed Kudus is someone who brings the left footedness, थोड़ा सा जो मैंने बोला था दिबाला के जो लिंक्स आए थे जो अभी पॉसिबल नहीं है, जोसे मोरिन्हो has confirmed it, so I think Mohamed Kudus could have been a very good option, क्योंकि वो कैम खेल सकते हैं, फॉल्स 9 खेल सकते हैं, राइट अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकते हैं, he could play a number 8 in a 4-3-3 as well, तो that is for sure a good option। मेरे ख्याल से क्वालिटी भी है एंड टॉप लेवल ऑफ फुटबॉल भी खेला है विद Ajax एंड चैंपियंस लीग एज वेल इन द फॉर द फ्यूचर। तो बट यहाँ क्या हो गया भाई, काइसेडो का भी तो हुआ नहीं है, और काइसेडो का भी न्यूज है, उस पर भी आ रहे हैं, एब्सोल्युटली बिटर स्वीट है फॉर श्योर। तो काइसेडो एक्चुअली मिस्ड ट्रेनिंग, ही मिस्ड ट्रेनिंग, यस इट्स जस्ट नॉट जो प्री सीजन मैच में नहीं थे बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड इंजरी जो ब्राइटन ऑफिशियल्स आर सेइंग, बट उनके लॉजिक के हिसाब से अभी भी ये ट्रेनिंग मिस किया क्योंकि इंजरी है। लेकिन एज पर a lot of reports
बोल रहे कि यार ही मिस्ड ट्रेनिंग बिकॉज वो निकलना चाह रहा है, और इट्स वेरी क्लियर, इट्स जस्ट नॉट दैट। ये भी रिपोर्ट्स आ रही है, पता नहीं कोई उसके रूम में जाके देखा है कि नहीं यार, ऐसे रिपोर्ट कहाँ से आते हैं, पता नहीं उसके टीममेट लीक करते हैं क्या प्लेयर्स के, आई डोंट नो, इतने साल से फॉलो कर रहा हूँ, आई डोंट नो ये सांप कहाँ से आते हैं टीम में, एज मच एज आई वांट कैसेडो, कि बोला गया ही हैज एक्चुअली पिक्ड अप हिज थिंग्स, तो भाई सब इकट्ठा कर दिया बक्से में डाल दिया अपने बस्ते में। आई डोंट बिलीव दैट इज ट्रू, बट वो भी न्यूज में आ रही है, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगेन रेलेवो है सोर्स, सो नॉट श्योर हाउ रेलेवेंट इट इज, लेकिन डिड नॉट ट्रेन तो पक्की बात है, तो वो तो पता लग जाता है राइट फोटोग्राफर्स को। तो आई थिंक दैट इज श्योर दैट ही वांट्स टू कम। अब कितना बिड जाएगा, यस देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू बिड इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। हो सकता है विद इन 48 आवर्स वी नीड द प्लेयर, तो हो सकता है 24 आवर्स के अंदर हो बाय द टाइम यू वॉच दिस वीडियो। तो आई एम स्टिल सेइंग, आई एम ऑप्टिमिस्टिक भाई कैसेडो आने वाला है, थोड़ा सा बढ़ा के दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, बिकॉज आई स्टिल बिलीव ही इज नोवेयर क्लोज टू जो वैल्यूएशन करिए ब्राइटन। लेकिन ब्राइटन तो हमें पता है, हाँ दे रियली और यू नो डस के पैसे लेने का, हड़प लेने का है उनका, लेकिन ठीक है फेयर इनफ। बट उतना ही नहीं, बट प्लान बी पर आ जाते हैं वापस, कमिंग बैक टू द इंकुंकू सिचुएशन। ये भी एक आ रहा है जो हमने कल रात को बोला था, नेमार टू बारसा, हाउ इज इट पॉसिबल बाय बारसा सेलिंग 1 or 2 प्लेयर्स, आइडियली 2, ठीक है, फाटी और फरान टोरेस। तो हो सकता है दैट नेमार कम्स टू बारसा, वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन जावी का कॉल है एज वेल एज ऑब्वियसली द क्लब्स कॉल, इफ दे आर एबल टू मेक दो सेल्स एंड देन परचेज हिम, एंड वो इंटेंट है कि नहीं, वो खुद तो जाना चाहेगा, लेट्स बी रियल अबाउट इट। Fabrizio also has said that there is no two ways about it that Neymar would not mind that given a choice, ठीक है। लेकिन नेमार का कैंप क्या बोल रहा है यहाँ पर? आई थिंक नेमार्स डैड वाज आस्क्ड, एंड दैट वाज इंटरेस्टिंग, दैट ही वाज आस्क्ड वेदर दैट रिपोर्ट इज ट्रू अबाउट हिम वांटिंग टू मूव आउट ऑफ पेरिस। तो उन्होंने बोला भाई मैं ऐसा कोई न्यूज कंफर्म नहीं करने वाला जो नहीं हुआ है। तो आई डोंट थिंक वैसा कुछ हुआ है कि यार पक्का वो छोड़ने ही वाला है फॉर श्योर पेरिस PSG। तो अभी भी देयर इज अ चांस दैट ही माइट स्टिक अराउंड अगर कुछ नहीं होता है मूवमेंट, बट आई एम प्रिटी श्योर यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, सब कुछ समझते हैं। PSG fans do not love him as what आप expect करोगे compared to what he was 2 years ago. So I think it's a clear case कि if Barca and Chelsea move, and yes Chelsea क्यों आ रहा है, because there is actual news कि Neymar's camp is talking to Chelsea, तो वो एक ऑप्शन रखा है। But again आप लोग बोलिए, should we go for a player who clearly loves Barca more than Chelsea? लेकिन he's been very professional साथ साथ में, ऐसे नहीं भाई, unlike a certain Joao Felix। और यहाँ पर मुझे पता है मैनिफेस्टेशन हो रहा है, some fans are asking for Joao Felix to be signed. I do not think so। मैं खुद बोल रहा था नहीं, I would like to keep him, but now वो मुझे Kai Havertz वाला वाइब दे रहा है बहुत ज्यादा। And I know I love Kai Havertz for having met me earlier and scoring the Champions League final goal, and of course that Club World Cup जो लोग भूल जाते हैं penalty, but and others as well। लेकिन हाँ, either ways the guy says that this was my dream Arsenal को आना है। कम ऑन यार, वो सेम चीज फेलिक्स भी कर रहा है कि यार माय ड्रीम क्लब इज बार्सिलोना। चलो ठीक है, वो हमेशा से बोलता आ रहा होगा, बट वो क्लियर हो गया और भी कर रहा है, स्पेशली जब वो एथलेटिको मैड्रिड प्लेयर है। ऐसा तो नहीं ना नेमार आकर बोल रहा है कि भाई माय ड्रीम क्लब इज बार्सिलोना, आई वुड लाइक टू गो एटसेट्रा। तो वो चीज थोड़ा डिसरेस्पेक्ट है टू इस करंट क्लब, तो वो रेड फ्लैग है। तो आई वुड नॉट हैव जाओ फेलिक्स। तो अगेन वो एक ऑप्शन रख सकते हैं आप। देन कुडूस मैंने बोला है, देन ऑफ कोर्स वेगा बोला है, रायन चेरकी आई थिंक द एटीट्यूड इज समथिंग दैट चेल्सी वरंट श्योर अबाउट। लेकिन ओलिसे कुड बी अ रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट। हाँ वो कैम नहीं है, बट ही कुड प्ले देयर, रिमेंबर दैट ही कुड प्ले देयर। आइडियल पोजीशन मैं अभी भी बोलता हूँ मडुएके टाइप ऑफ पोजीशन है ओलिसे का, लेकिन अगेन रिलीज क्लॉज है एंड इट इज डुएबल। वहां पर हॉटसन से पूछा गया क्रिस्टल पैलेस के मैनेजर को, उन्होंने बोला नो वन नोज एट दिस मोमेंट, इफ देयर आर क्लब्स डेस्परेटली और सीरियसली प्रिपेयरिंग अ बिड एंड टेम्प्टिंग हिम, देन ही विल डिसाइड एंड आई विल वेट एंड सी। अब देखते हैं भाई सच में जो बोल रहे वही है कि नहीं। अगर सच में बोल रहे तब तो भाई हाई चांस ओलिसे इज कमिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता बर्नार्डो सिल्वा इज लिविंग सिटी, और आई थिंक कोल पामर आई नो ही वुड लाइक टू गेट मोर गेम टाइम एज वेल एज फोर्डन, मेरे ख्याल से उनको मिल सकता है। एंड आई थिंक दे आर गुड इनफ एज मच एज रायन चेरकी भी लिंक्ड है विद सिटी अलोंग विद वेगा। लेकिन हाँ आप लोग बोलिए यस बर्नार्डो को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है एज पर द न्यूज, तो बाय द टाइम यू वॉच दिस वीडियो इट विल बी साइन्ड एंड ही विल रिमेन इन सिटी। सो सॉरी बार्सा फैंस अबाउट दैट। बट टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर, भाई साहब ये क्या हो गया, एक और बिड आया यार। दिस इज फॉर हैरी मैग्वायर एंड आई नो आई एम अ लिटिल लेट टू द पार्टी, बट 30 मिलियन बिड है, एक्चुअली 60 मिलियन बिड था मैकटोमिने और हैरी मैग्वायर को जोड़ के कंबाइन बिड, और वहां पर लेकिन मैकटोमिने के लिए भाई नो थैंक यू बोल दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, दैट दे एक्सपेक्ट मोर फॉर मैकटोमिने एंड व्हिच इज फेयर कंसीडरिंग हिज एज, कंसीडरिंग उसका वर्सेटिलिटी एंड ऑल दैट, आई गेट दैट टोटली, ठीक है, और होम ग्रोन फैक्टर एंड ऑल दैट, राइट। तो जनरली ब्रिटिश है, आई थिंक इट काउंट फॉर श्योर, ठीक है। एनीवे सो
मैग्वायर का 30 मिलियन आई थिंक ये होने वाला है, तो वो जाने वाला है वेस्ट हैम, सो आई डोंट थिंक एनी इश्यूज देयर। अगेन आप लोग बोलिए इफ यू डिसएग्री कि 30 मिलियन इज स्टिल लो, आई बिलीव इज फेयर, आई बिलीव इज एब्सोल्युटली फेयर। मतलब I'll bite your hand off if I was a Manchester United fan right now, और अगर वेस्ट हैम दे रही है मुझे 30 मिलियन फॉर हैरी मैग्वायर, एज मच एज वो है इंग्लैंड इंटरनेशनल जो स्टार्ट करता है, which is itself debatable. But again आप लोग बोलिए what about McTominay, what should be his actual price, जो करना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक्सेप्ट। But yeah, I think Premier League का इतना ही। I know towards the end of the stream last night we kind of covered it, लेकिन लाविया का last bid, recent bid has been again rejected by Southampton, 45 million pound का था। So मेरे को लगता है last bid एक और final आने वाला, and that's it. I know Dewsbury Hall is a backup, चौमनी realistic नहीं है, तो I think it might happen, लेकिन जैसे चाह रही है Southampton closer to 50 million ही होगा in terms of the overall package। हाँ भाई एक और न्यूज है, and that is surprising news कहीं ना कहीं, and that is I don't know, मतलब should I say it happily or should I say it भाई ये क्या हो गया मतलब एंटी क्लाइमैक्स हो गया तो कहीं ना कहीं, and that is about of course not Dusan Vlahovic, वो तो होने वाला है, by the way options में absolutely वो भी है, no two ways about it, because the talks are beginning today again with Juventus। लेकिन an adult subscription platform My Club has offered Chelsea 40 million pound a year to sponsor the club's shirt ahead of the Liverpool game। और भाई उनके प्रेसिडेंट ने कुछ बोला है भाई, मैं अगर हम आ जाते हैं तो एम्बापे और मुड्रिक को सब प्राउडली करेंगे शेयर उनके ट्रेनिंग एक्सक्लूसिव्स एंड सम रबिश। हाथ जोड़ो यार, मुझे नहीं चाहिए, टू बी ऑनेस्ट वी डोंट वांट बैगेज। व्हाई? एज एन अगेन मैं कोई बुरी बोल रहा हूँ, गंदी बात है, अच्छी बात है, वो सब कुछ नहीं बोल रहा हूँ। द पॉइंट बीइंग दैट मेनी किड्स आल्सो वॉच एंड मेनी एडल्ट्स आल्सो वॉच। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एन अडल्ट say sponsor coming in, it is also supposed to be seen by kids, and which is not preferred, right? So obviously मैं नहीं बोलूंगा कि that should come anywhere close if you are even thinking मेरे ख्याल से कुछ आइडिया है। लेकिन हाँ व्लाहोविच के सिचुएशन में ही एंड करके बोलते हैं यार, लुकाका भाई, लुकाका ने जितना भी ट्राई किया ना चेल्सी ने कि भाई तू सऊदी ले ले, बंदा बोल रहा है नहीं, I am one of the best strikers in the world and I have major ambitions। तो भाई बंदा मूव नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं we will be forced with the Vlahovic situation, looks like it। मुझे तो likely लग रहा है, अगेन मैं माइंड नहीं करता, लेकिन is he ideal for Pochettino as a starter for 90 minutes? Probably not, मैं बोलता हूँ as a plan B definitely yes। Again it depends a lot कि कैसा करता है Broja coming back from injury, and of course the other youngsters especially Carney, अब हो सकता है he gets more starts। But let me know what you think about that upcoming Liverpool game and other games, and thank you again for 10K, much love, always a fan channel for all to see।